متنازع تقریر، شو کاز نوٹس، استعفی، عدالت میں پیشی، معزز جج صاحبان کے سخت ریمارکس اور پھر استعفی واپس۔ یہ کہانی شروع ہوئی 28 مئی کو نون لیگ کے سینیٹر نہال ہاشمی کی جذباتی تقریر سے، اور پھر تقریر میں نہال ہاشمی نے جو کہا وہ ان کے لیے مشکل کا باعث بنا، خود شریف خاندان کے لیے، نون لیگ کے لیے مشکل کا باعث بنا۔ مگر پھر کہانی میں ٹوسٹ آیا، جہاں ان کے خلاف مقدمہ ہو گیا، عدالت میں پیشی ہو گئی، اٹارنی جنرل نے بہادر آباد تھانے میں کراچی میں خط لکھ کر ان کے خلاف مقدمہ کرا دیا۔ مگر پھر ایک ٹوسٹ آیا کہ نہال ہاشمی نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا۔ پہلے اپوزیشن کہتی تھی نہال ہاشمی نے جو تقریر کی وہ میاں نواز شریف کے کہنے پر تھی، عدالت نے بھی ایسے ہی ریمارکس دیے، عدالت نے سیسیلین مافیا کا لفظ استعمال کیا، وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان کی طرف سے ایک بہت ہی سخت رد عمل سامنے آیا عدالتی ریمارکس پر۔ مگر پھر ایک عجیب کہانی ہوئی کہ نہال ہاشمی نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا، اور اپوزیشن نے کہا کہ جو استعفے کی واپسی ہے یہ بھی میاں نواز شریف کے کہنے پر ہے، نہال ہاشمی خود استعفیٰ واپس لے نہیں سکتے۔ یہ کہانی کیا ہے؟ نہال ہاشمی یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ ابھی تک میڈیا پر آ کر اپنا موقف دیا نہیں تھا، لیکن آج ہمارے ساتھ نہال ہاشمی موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ وہ یہ سب میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پر کر رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں، تو اتنا الگ الگ ان کے ایکشن کیوں ہیں کہ جس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ واضح طور پر کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں جو بعد کے واقعات ہیں اس پر آتا ہوں، پہلے واقعے پر بعد میں جاؤں گا۔ آپ کا استعفیٰ واپس لینا یہ میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پر آپ نے کیا، پارٹی کی قیادت پر کہنے پر کیا، یا خود آپ کو خیال آیا کہ آپ نے استعفیٰ واپس لینا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاذیب بھائی، یہ کلیاً میری پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پارٹی کا جو فورم ہے، میں نے خود درخواست کی تھی قائد محترم سے کہ اس پہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو کہ یہ دیکھے کہ یہ سائبر کرائم ایکٹ میں آتا ہے، اور میری مدد کی جائے کہ جن لوگوں نے سوشل میڈیا میں اس کو دیا تھا، تو اس کے حوالے سے ایک 9 تاریخ کو ہماری میٹنگ کال ہوئی ہے جس میں اس پہ ڈسکشن ضرور ہوگی۔ یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا مشعل خان کا کیس، مشعل خان کے ساتھ یہ ہوا کہ پہلے وہ قتل کر دیا گیا، اور بعد میں لوگوں کو احساس ہوا کہ پورا پاکستان چیختا رہا، پوری دنیا کے مشعل خان کے ساتھ زیادتی ہوگی، مگر مشعل خان واپس نہیں آ سکا۔ یہاں بھی میرے ساتھ بھی سوشل میڈیا میں ایسے ہی کچھ ہوا، اور پہلے انہوں نے مجھے ایک ویلن کے طور پہ پیش کیا اور ڈسٹارٹ کر کے میری تقریر کو پیش کیا گیا۔ اس کو پورے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ، میں آج سی ڈی بھی لے کے آیا ہوں آپ کے ادارے کو، میں سی ڈی بھی دے کے جاؤں گا جس کو آپ چلا سکیں گے، اور آپ کے پاس میرے پاس آپ کی پوری تقریر موجود ہے، میرے پاس ہے آپ کی پوری تقریر۔ مگر میں اس تقریر کے کانٹیکسٹ پہ جانے سے پہلے، آپ تو مشال خان اور وہاں چلے گئے، ظاہر مشال خان کی کوئی ایسی تقریر تو سامنے پہلے آئی نہیں تھی، اور آپ کو بھی پورا موقع ملنا چاہیے اپنی صفائی دینے کا، مگر یہ استعفیٰ جو آپ نے واپس لیا ہے یہ میاں نواز شریف کے کہنے پر لیا؟ نہیں، میں نے آپ کو پھر ایک بات بتایا کہ میری قیادت سے میری کوئی گزشتہ ایک ہفتے 15 سے کوئی رابطہ نہیں ہے، میں میاں صاحب سے کوئی وہ انسٹرکشن اس طرح سے نہیں دیتے ہیں۔ وہ ایک بڑا اسٹیٹس مین آدمی ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ میاں صاحب کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں وہ بالکل نادان لوگ ہیں، ان کو ان کی مائنڈ سیٹ کا پتہ نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نہیں، ان کے سامنے سی پیک ہے، اس کے سامنے نہال ہاشمی صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں، میاں نواز شریف صاحب اور آپ کے لیڈر ہیں، آپ نے ان کی کہی ہوئی بات سے آپ مکر گئے۔ اگر انہوں نے آپ کو استعفیٰ دینے کو کہا تھا، آپ نے استعفیٰ ان کے کہے بغیر واپس لے لیا۔ اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے کمیٹڈ آپ کارکن ہیں، گراس روٹ سے اوپر آئے ہیں، بغیر ان کے کہے آپ نے کیا سارا کام؟ استعفیٰ واپس لینے کا بول رہا ہوں جی۔ اس میں 2 چیزیں دیکھیے شاذیب، اس میں 2 چیزیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ جب میں نے اپنی تقریر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میں نے کہیں پہ کوئی کنٹیمپٹ یا کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ اس وقت میں نے یہ سوچا، اور یہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میری پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب نے آپ کی تقریر دیکھے بغیر، آپ کہہ رہے ہیں آپ کی تو ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے کہا نا کہ استعفیٰ دے دو، تو انہوں نے کیا آپ کی بات بھی نہیں سنی، آپ کی تقریر بھی نہیں دیکھی اور آپ سے استعفیٰ مانگ لیا؟ میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، میری ملاقات نہیں ہوئی تھی میاں نواز شریف صاحب سے۔ یہ ایک مختلف طریقے سے جو ایک ہائپ کریٹ ہوا تھا، اس پہ پریشر تھا، میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ کو پی ایم ہاؤس نہیں بلایا تھا؟ نہیں رہا ہے، پی ایم ہاؤس ضرور بلایا گیا تھا، مگر میری قائد محترم سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ تو پھر کس سے ملے تھے آپ پی ایم ہاؤس جا کے؟ یہ پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے۔ دیکھیے، میں اس مائنڈ سیٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے یہ پورا ہائپ کریٹ کیا، اور آپ خود بھی دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا، دوسرے دن کورٹس نے بھی یہ بات کا اندازہ کیا۔ پارٹی میں کس نے کہا؟ ایک مائنڈ سیٹ تھا، ایک پریشر، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب، ایسا کون ہے پارٹی میں میاں نواز شریف کے علاوہ کہ جن کے کہنے پر آپ نکلے پرائم منسٹر ہاؤس سے، آپ نے اپنا استعفیٰ دیا، اور یہ کون ہے پھر؟
یہ تو پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے، آپ خود تلاش کر لیں. بہت سارے دوستوں نے مہربانیاں کی ہیں مجھ پہ، بہت سارے دوستوں نے مختلف باتیں مجھ پہ الزامات بھی لگائے، مگر میں جانتا ہوں پارٹی کا انٹرنل میٹر نہیں ہے نیال ہاشمی صاحب. پارٹی کا انٹرنل میٹر اس لیے نہیں ہے کیونکہ کرمانی صاحب نے آ کے کہا کہ آپ نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دی ہے. تو یہ پارٹی کا انٹرنل میٹر نہیں ہے. اب یہ میڈیا پر بات ہو رہی ہے، پاکستان کا میٹر بنا ہوا ہے. تو آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کی آخرت اور دنیا دونوں تباہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. میں تو یہ جانتا ہوں کہ میرے اللہ کو معلوم ہے کہ میری دنیا کتنی آباد ہے اور میری آخرت کتنی محفوظ ہے یا نہیں محفوظ ہے، یہ میرا رب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کرمانی صاحب کو خوش رکھے. نہ میں کسی کے گود میں جا کے بیٹھتا ہوں، نہ میں تو اللہ سے ہمیشہ اور اس رمضان کے مہینہ میں گڑ گڑا کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نہ صرف میرا بلکہ پورے مسلمانوں کی عاقبت کو سنوار دے مالک. مجھے یہ بتائیے آپ کتنے عرصے سے پارٹی میں؟ 30 سال کم و بیش 30 سال ہو گیا. اور میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 30 سال سے میں نے تنخواہ نہیں لی. ہم جو کارکن ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ کو نیال ہاشمی صاحب 30 سال میں مجھے پتا ہے گراس روٹ سے آپ اٹھ کر آئے ہیں. مارشل لاء کے دور میں بھی آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے، پیچھے نہیں ہٹے. ابھی بلدیاتی الیکشن میں آپ نے پارٹی کے لیے بڑا کام کیا، تنخواہ نہیں لی، ساری باتیں پتہ ہیں. 30 سال ہو گئے. آپ کی ٹوٹل عمر کتنی ہے نیال ہاشمی صاحب؟ میری عمر 60 سال ہے. ماشاءاللہ 60 سال کے آپ ہیں. 60 سال اپنی زندگی میں اور 30 سال پولیٹیکل کریئر میں کوئی ایک دفعہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف نے کچھ کہا اور آپ نے نہ مانا؟ دیکھیے میاں نواز شریف ہمیشہ ہمیں بڑے پیار دیتے رہے ہیں، ہمیشہ پیار دیتے ہیں. اور اب بھی میاں صاحب سے میں نے کہا کوئی رابطہ نہیں. اور میاں صاحب نے یہ بھی کیا کہ کمیٹی جو بیٹھ گئی، کمیٹی فیصلہ کری، لیٹ دا کمیٹی ڈیسائیڈ. اور آپ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت علی کا سوچ بھی نہیں سکتے جو آپ نے 30 سال میں نہیں کی، رائٹ؟ آف کورس ناٹ. آف کورس مگر میں اپنے کلنگ، مجھے اللہ تعالیٰ یہ حق دیتا ہے، میرا آئین دیتا ہے کہ میں اپنے دفاع کا حق رکھوں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ میاں نواز شریف کی، تو پھر میں آپ کے قائد کے پاس جاؤں. آپ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت علی کا صرف میرے نہیں نیال ہاشمی صاحب، کیونکہ آپ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت علی کا سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے کہا آف کورس ناٹ. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو اپنا استعفیٰ واپس لیا ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب کی کوئی حکومت علی نہیں کی، پارٹی کے کہنے پر لیا ہے نا. ثابت ہو گیا. 30 سال میں کبھی کی نہیں تو اب کیوں کریں گے؟ بالکل نہیں. پارٹی تو دیکھیے میاں صاحب مجھ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے. مجھے مہینہ ہو گیا ان سے. وہ جب کراچی آئے تھے تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد نہ میری ان سے رابطہ ہے، نہ کوئی ملاقات ہے، نہ کوئی اور طریقہ. دونوں میں سے ایک کام آپ نے میاں صاحب کے کہنے پر کیا ہوگا، یا تو استعفیٰ میاں صاحب کے کہنے پر دیا ہوگا یا استعفیٰ واپس میاں صاحب کے کہنے پر لیا ہوگا. دونوں میں سے کون سا کام آپ نے میاں صاحب کے کہنے پر کیا؟ دونوں چیز نہیں. دیکھیے میں حلفاً میں باوضو آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ آپ سے بڑی عدالت، سب سے بڑی عدالت میری اللہ کی. کیا معلوم میں اسی لمحے میرا روح قبض ہو جائے تو میں جھوٹ کیوں بولوں گا. نہ ان کے کہنے پہ استعفیٰ دیا ہے، نہ ان کے کہنے پہ استعفیٰ لیا ہے واپس. تو کسی پہ بہتان تراشی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب. میاں صاحب کے کہنے پر نہیں لیا مگر کسی کے کہنے. اچھا پھر کس کے کہنے پر استعفیٰ دیا تھا اور کس کے کہنے پہ واپس لیا ہے آپ نے؟ پارٹی کے انٹرنل میٹر ہے. پارٹی میں ایسے دوست ہیں، ایسے مہربان ہیں. ہو سکتا ہے کچھ ایسے طبقات ہوں گے جن کو جو جلدی میں ہو، میں یہ نہیں بتا سکتا. کچھ ایسے دوست جلدی کسی نے تھوڑی کی ہے، آپ نے کی تھی. جلدی میں استعفیٰ دیا بھی ہے، جلدی میں واپس بھی لیا ہے. آپ نے جلدی کی ہے. اور وہ میاں صاحب کے جن لوگوں نے کریٹ کیا ہے، یعنی کہ نیال ہاشمی صاحب پھر میں آپ کو چلے پھر اس سے یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے. مہربانی آپ اگر اجازت دے تو میں اپنی تقریر کو وہ پڑھ لوں. میں تقریر کی طرف آ رہا ہوں. میرے پاس آپ کی تقریر کا ٹیکسٹ ہے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں. مگر آپ مجھے یہ ضرور بتا رہے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ جس کو نون لیگ بڑا چڑھا کر پیش کر رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے فوری طور پر نوٹس لیا، فوری طور پر نیال ہاشمی کو ریزائن کرنے کو کہا، ریزائن کرنے کو کہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب نے آپ کو ریزائن کرنے کو کہا ہی نہیں تھا. میاں صاحب کے لیے اتنا بڑا ایشو تھا ہی نہیں. دیکھیے میری جنرل سیکریٹری شپ کو معطل کیا گیا ہے. میں تو بالکل آئسولیٹڈ ہو گیا. میں بالکل آئسولیٹڈ ہو گیا. ہر کوئی میرے کندھے پہ آ کر کے، دیگر پارٹی کے لوگ بہت سارے، میں شکر گزار ہوں میڈیا کا کہ انہوں نے اس کو پھر سمجھ لیا. کیونکہ سوشل میڈیا میں جس طرح سے مجھے ڈسٹارٹ کیا گیا تھا، مجھے مشعل خان بنانے کی کوشش کی گئی تھی. ایک تو میڈیا نے نہیں سمجھا اور بیچارے مشعل خان سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں، ایک الگ کیس ہے. ایک تو نیال ہاشمی صاحب آپ یہ واضح ہو گیا کہ میاں صاحب نے آپ کو استعفے کے لیے نہیں کہا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے کیونکہ نون لیگ تو اس کا ہی پرچار کر رہی تھی. سپریم کورٹ کے الفاظ کا اور ریمارکس کا جواب یہ کہہ کر دیا گیا کہ آپ سے فوری استعفا لیا گیا تھا. اس طرح کی تقریر کی، 12 تقریر کی ان کے خلاف. اس طرح سے لوگ اور سوشل میڈیا نہیں کھڑے ہوئے. چونکہ میں ایک مڈل کلاس کراچی کا ہوں اس لیے یہ چیز کیا جا رہا ہے. یہ انتہائی نامناسب اور یہ پاکستان کے لیے بھی نامناسب ہے کہ سیاسی کارکنوں کو وکٹمائز کیا جائے. آپ کی تقریر پر آتے ہیں اور یہ بات واضح ہو، اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں اور عوام کو بھی کہ جو سپریم کورٹ کے ریمارکس کا وزیر اعظم ہاؤس کے ایک ان نون ترجمان نے جواب دیا تھا، اس میں اس بات کو بنیاد بنایا تھا کہ آپ سے فوری استعفیٰ لیا گیا. آج آپ نے بتا دیا کہ آپ سے میاں نواز شریف نے استعفے کا نہیں کہا تھا. بڑی بات ہے. ناؤ آگے آتے ہیں، آپ کی تقریر کی طرف آتے ہیں. میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میری میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی ہے.
हाँ तो मैं फिर आपको मुलाकात ही नहीं ना, यानी कि तर्जुमान वजीर आजम हाउस की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट को जवाब आया वो एक झूठ पर मबनी था ना, आपको तो कहीं नहीं इस्तीफे का। तर्जुमान है ये, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरी पार्टी का इंटरनल मैटर है। नहीं, पार्टी का इंटरनल मैटर है, मीडिया पर आप आए हैं, आपको शो में बुलाया है, आप आए हैं, आपके पार्टी के रहनुमा मीडिया पर बैठकर बात कर रहे हैं और आपने कहा कि आपके वजीर आजम ने आपको नहीं कहा इस्तीफा देने को, फिर भी आपने पता नहीं क्यों दिया। रहनुमाओं से पूछे ना भाई, उन दोस्तों से पूछे, मुझसे ना पूछे। कौन से ऐसे रहनुमा जिनकी बात आपने मान ली? 60 बरस के आप हैं, 30 साल पार्टी में हो गए, आप खुद एक बहुत सीनियर रहनुमा हैं, किसकी बात मान ली आपने वजीर आजम नवाज शरीफ के अलावा? ये आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बड़े अच्छे सहाफी, आपको यकीनन पता चल जाएगा। मैं इस किसी के ऊपर अभी पता चल रहा है आपकी बात, मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता। अच्छा निहाल हाशमी साहब, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि आपने कहा कि आपकी तकरीर पढ़ लें, चले पहले आप पढ़ें, क्या ऐसा तकरीर में जो आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, बताएं क्या? देखिए यहाँ पे जो तकरीर में मेरा हिस्सा जिसको गलत तरीके से प्रिंट किया गया, यहाँ पे एक चीज़ बात हुई कि जो जावेद ने कहा कि आज उन्होंने एक तारीखी दिन किया है, जो को भेज दिया जीआईटी। मैंने कहा मैं बिल्कुल जाना चाहिए, जिस दिन के हम मानने वाले हैं, इसने झुकना सिखाया, अपना एहतसाब सिखाया अपना भी और अपने आने वाले बच्चों का भी। और सुन लो, जो हिसाब ले रहे हो तो नवाज शरीफ का बेटा और हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया और जो ले रहे हैं, कान खोलकर सुन लो, जो छोड़ना नहीं। तुमको आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे ख़ानदान के लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर देंगे। हमने तुमको बाज़मीर बाकिरदार नवाज शरीफ का ज़िंदा रहना तंग कर दिया है। पाकिस्तानी कौम तुम्हें तंग कर देगी। और बनी गाला में रहने वालों, ये इमारत मॉडल टाउन का घर है, ये खून पसीना का है, ये यहूदी सरमाए से नहीं बनाया है, ये जमायमा के पैसों से नहीं बनाया ये, और ये कौम गवाह है, और ये कौम तुम्हारे लिए भी ज़मीन तंग कर देगी। तो मैंने कहाँ पे किसी भी शख्स के बारे में गलत, फिर एक जगह जिसको पकड़ा गया और वो है। एक मिनट, अब मैं आपके लिए आपकी तकरीर का टेक्स्ट पढ़ता हूं, फिर आपसे सवाल करता हूं। आपकी तकरीर का टेक्स्ट, आपने पहले कहा कि सीपैक में नवाज शरीफ का किरदार है, अगर आज 52% पाकिस्तान में सरमायाकारी चाइना की है तो ये किरदार नवाज शरीफ का है। और फिर आपने आगे कहते हैं, अब ये जुमला जरा गौर से सुनिएगा, आप कहते हैं और फिर जो जावेद ने कहा कि आज एक तारीखी दिन था, यानी कि 28 मई यौम तकबीर पे आप बात कर रहे थे, तो फिर जावेद ने कहा कि आज एक तारीखी दिन था, उन्होंने भेज दिया जीआईटी में, जिस दीन के हम मानने वाले हैं उसने झुकना सिखाया है, अपना एहतसाब सिखाया है, अपना भी और आने वाले बच्चों का भी। और सुन लो, हिसाब हमने ले रहे हो, वो नवाज शरीफ का बेटा है, हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं, हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा हिसाब बना देंगे। कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं है। तुम आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे। पहले आपने जावेद का रेफरेंस दिया, फिर जीआईटी की बात की, फिर हिसाब देने की बात की, फिर कहा हिसाब लेने वालों, फिर कहा आज हाजिर सर्विस हो, फिर कहा कि जब कल रिटायर हो जाओगे तो तुम्हारे बच्चों के लिए जमीन तंग कर देंगे। किसके बारे में बात कर रहे थे अगर जीआईटी के लिए नहीं कर रहे थे आप? अगर उसके एक्सटेंड में आप देखें तो मैंने कहा बनी गाला में रहने वालों। बनी गाला में कौन हाजिर सर्विस है? निहाल हाशमी साहब, बनी गाला में कौन हाजिर सर्विस है? देखिए, हाजिर सर्विस सियासतदान भी होता है, हाजिर सर्विस वापदा वाला भी होता है, हाजिर सर्विस एजुकेशन में भी होता है। कभी वजू का हवाला देते हैं, कभी रोजे का हवाला देते हैं आप। बनी गाला में कौन शख्स है जो रिटायर हो रहा है कल? तो मैं रोजे जिसके बच्चों की आप जिंदगी इस मुल्क में आसान बना देंगे, जिसके बच्चे यहाँ रह भी रहे हैं। सेनेटर्स भी होते हैं, रिटायर एमएनए और सेनेटर्स भी होते हैं। आपने कहा कि आपने इमरान खान के बारे में कहा था, जो हाजिर सर्विस भी है, जो रिटायर भी होगा, फिर जिसके बच्चे भी पाकिस्तान में हैं, जिनको आप तंग कर देंगे जमीन। मगर का मेंबर है, जो एमएनए है, मगर सवाल उठता है, मगर सवाल उठता है, एमएनए भी रिटायर होते हैं, जीआईटी के भी मेंबर होंगे इमरान खान। मगर सवाल ये उठता है कि आपकी इस बात से ना किरमानी साहब कन्विंस हुए, ना मुशाहिदुल्लाह कन्विंस हुए, तर्जुमान वजीर आजम हाउस से जो इतनी बड़ी प्रेस रिलीज आई ना वो कन्विंस हुए। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि जो बात आपने की आपको नहीं करनी चाहिए थी, कुर्बानी का बकरा तो दिया था मगर उसकी कुर्बानी कबूल नहीं की, इसलिए बकरा बिफर गया। उन्होंने जवाब बात की, ट्वीट की आपकी पूरी पार्टी ने कि आपने बहुत गलत बात की। मरियम औरंगजेब साहिबा बार बार कह रही है कि आपने जो कहा वो इंतहाई गलत कहा। अपनी पार्टी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं आप कि आपने जीआईटी के बारे में नहीं कहा था, आवाम को कन्विंस कर रहे हैं शो में आके। अल्लाह को कन्विंस करे, कौम को कन्विंस करे। देखिए, देखिए बहुत सारे लोगों के अपने अपने ख्यालात होते, सोच। मेरे तकरीर का आखिरी हिस्सा भी आप देख लीजिए, जिसमें हमने कहा है कि हम 3 अदालतों में जाएंगे। आखिरी लाइन, एक अदालत अल्लाह की अदालत, अवाम की अदालत और पाकिस्तान की आईनी अदालत के सामने अपने आप को पेश करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। हमने कहां पे अदालत के खिलाफ बात की है भाईजान? तो आपने इस्तीफा क्यों दिया था? आप कहते थे मैंने बात की नहीं। आपने इस्तीफा क्यों दिया? एक मिनट, साइबर क्राइम एक्ट के तहत किसी के तकरीर के कोई हिस्से चंद सेकंड को लेकर के अगर डिस्टॉर्ट, ये कानूनी जुर्म है। पूरी कंटिन्यूटी में आपने यही तकरीर की है, कोई जुर्म नहीं करूंगा। मैं साइबर क्राइम छोड़े, मैं नेशनल मीडिया पे बोल के कह रहा हूं कोई जुर्म नहीं हुआ, आपने बात ही ये की है।
कोई जुर्म नहीं हुआ। आपने एग्जैक्टली यही बात की है, आपकी पार्टी भी कन्विंस नहीं है, और आपने इस्तीफा क्यों दिया था? फ्लो में एक पाकिस्तानी की बात कर रहा था, आपने इस्तीफा क्यों दिया? मैंने किसी को स्पेसिफिक कोई धमकी नहीं दी। आपने इस्तीफा क्यों दिया? देखिए, मैंने आपको फिर एक बात बताई, ये मेरी पार्टी का इंटरनल मैटर है और ये इंशाल्लाह पार्टी को कन्विंस कर नहीं पा रहे हैं, चल जाएगा। अगर आपकी बात में इतना दम था तो चले उस दिन जज्बात में हो गया। अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। उस दिन जज्बात में हो गया, अल्लाह ताला सब कन्विंस हो जाएंगे। देखिए, बात है, मैं समझता हूं कि दूसरे दिन जब मैं अदालत में गया तो जज हजरात का रवैया इंतहाई मुनासिब था और इंतहाई मुनासिब था, मगर मैंने आज सोचा कि मैं इस पाकिस्तान में जो इस तरह की चीजें चल रही, इस सदबाब एक बार खत्म हो जाए, भले उसके लिए निहाल आशमी, तो मैं इसलिए यानी कि लुबे लुबाब ये है सिस्टम में। अच्छा, लुबे लुबाब ये है कि पार्टी के कुछ रहनुमा ज़ाहिर है आपकी तरक्की से जेलस हैं, आप सेनेटर बन गए, इस बात से खुश नहीं है, तो वो अपने अपने तय बयान दे रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने आपसे इस्तीफा नहीं मांगा था, राइट? देखिए, मैं फिर आपको बताऊंगा, मैं पार्टी ने मुझे बुलाया है, मैं 9 तारीख को जाऊंगा, मैं पार्टी में बयान करूंगा। मैं किसी शख्स के बारे में ऐसा, मैं एक बात कह सकता हूं, मैं कल भी मुस्लिम लीग था, आज भी और कल मगर इस पूरे फैक्टर में 2 काम हुए ना और बिकने मियां नवाज शरीफ साहब, इस पूरे फैक्टर में 2 काम हुए। एक काम आपने किया जो कि सेनेट से इस्तीफे का था, दूसरा काम पार्टी ने किया जो कि आपकी जो बुनियादी रुकनियत है वो मुअत्तल करने का था और आपसे पार्टी ओहदा वापस लेने का था। अगर वजीर आजम से आप मिले नहीं और वो काम किसी ने आपसे करा लिया, तो ये दूसरा काम किसने किया आपको पार्टी से हटाने का? कुछ लोग उजलत में होते हैं, कुछ लोग उजलत में होते हैं। आप तलाश कीजिए उन उजलत वालों को, और आपसे मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इस मुल्क को अब आगे बढ़ना है। मैं शादेब भाई, अगर आप मुझे 30 साल से जानते हो तो मैं अगर बोला होता मैंने मैं आपको 30 साल से किसी भी इदारे खिलाफ, मैं आपको 30 साल से तो नहीं जानता, तो मैं आपको 7-8 साल से जरूर इस तरह जानता का आदमी हूँ। मैं एक सच्चा आदमी हूं, मैं 2 नंबर बात नहीं करता हूं, मैं झुकता हूं अपने रब के आगे और मैं साबित करूंगा अल्लाह ने मुझे हक दिया है, आइन पाकिस्तान ने हक दिया है, पाकिस्तान के निजाम ने हक दिया। आप जब बार बार अपने आप को सच्चा आदमी कह रहे हैं ना, खान, अल्लाह ने करम किया कि आप लोगों ने मशल खान बनने से मुझे बचा लिया। लाजमी साहब, आप जो बार बार बात कर रहे हैं ना, जिन लोगों ने असल तो इंक्वायरी उसके खिलाफ होनी चाहिए, ज्यादती ना करें मशल खान के साथ बार-बार अपने आप को कंपेयर करके। मगर निहाल हाशमी साहब, आपने मेरी तकरीर को डिस्टॉर्ट करके जब आप बार-बार भेजा है, जब आप बार-बार कहें, चाहता था इमरान खान, उसने भेजा है ये चीज। जब आप बार-बार कहें कि आप एक सच्चे आदमी हैं, जब आप बार-बार वुजू का और रोजे का हवाला दें, तो अपनी बात को, अपनी बात की अहमियत को और अपनी बात की इज्जत भी रखिए। फिर जब आप बात कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं पार्टी का इंटरनल मामला है, इस्तीफा किसी के कहने पे दे दिया, पार्टी में हटाया तो कुछ लोग उजलत में थे, इस्तीफा भी मैंने खुद ही वापस ले लिया, मियां नवाज शरीफ साहब से मैं मिला ही नहीं था। तर्जुमान से लेके हर कोई आपके खिलाफ बयान दे रहा है पार्टी में। कहें ना मियां नवाज शरीफ साहब से कि मेरी 30 साल की सर्विस है, रोके इन्हें मेरे खिलाफ बयान देने से, या फिर कहें कि आपको पार्टी से निकाले अगर आपने उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए इस्तीफा वापस लिया है। दोनों में से एक काम तो करें, अच्छे लीडर हैं आपके ये। शाहजेब भाई, असल मुद्दा मेरा इस्तीफा नहीं है, असल मुद्दा है कि इमरान खान ने जो साजिश गढ़ी थी उसको आपने अपने खिलाफ खुद साजिश की है, मादरत के साथ सोशल मीडिया में इसे डाला था। मिडिल क्लास आदमी हूं, मेरे गर्दन पे हर कोई आकर के गर्दन को दबोच रहा है, चूंकि मैं कराची से हूं इसलिए इमरान खान साहब भी दबोच रहे हैं। अब ये कार्ड भी खेलेंगे आप? बात है। अच्छा, आप कराची का कार्ड भी खेल रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, कराची का कार्ड ना खेलें। ये जो आप कराची का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, आखिर में आके झेलम की सीट से पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली की सीट पर सेनेटर बनाया मियां नवाज शरीफ साहब ने आपको, तो ये कराची का कार्ड ना खेलें आप। ऑफ कोर्स मैं पाकिस्तान की सियासत करता हूं, इसलिए मैंने आपकी बात की है। देखिए, मैंने अपनी पाकिस्तान की सियासत करते अपने ऊपर आई तो कराची का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। वो इमरान खान पे क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इमरान खान के कंटेम्प्ट को क्यों नहीं तकरीर कर रहे हैं? इमरान खान के अमल को क्यों नहीं कर रहे हैं? वो नईमुल हक को क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझ पे क्यों कर रहे हैं? मैं मिडिल क्लास हूं इसलिए मैं इस हवाले से कराची बात कर रहा हूं कि मुझ पे क्यों कर रहे हैं वो लोग जो इधर राइट लेफ्ट। अगर आपकी इस बात में भी मैं कहूं ना, निहाल साहब एक बात सुने, उसकी कंटेम्प्ट नजर नहीं आती है। निहाल साहब एक बात सुने, आपने जो बात की ना, अगर मैं कहूं कि इस बात में भी वजन है, अगर मैं कह दूं कि क्योंकि आप मिडिल क्लास है इसलिए आपके साथ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मियां नवाज शरीफ को भी एक मिडिल क्लास ही अपनी पार्टी में नजर आता है, जिसको वो बकरा बनाते हैं और उससे पार्टी के ओहदे से निकालते हैं, फिर उससे इस्तीफा लेते हैं, फिर उसके खिलाफ किरमानी साहब से बयानात दिलवाते हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के खुद करीब है। तो मियां साहब को आप कह रहे हैं कि मिडिल क्लास है तो इसलिए आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, और किसी को नहीं कह रहे आप, और किसी ने अभी तक आपको सजा तक नहीं दी। अटॉर्नी जनरल ने, अल्लाह जो हक देता है वो छीनना चाहते हैं मुझसे, जो आइन हक देता है वो मुझसे छीनना चाहते हैं, जो अदालतें हक देती है वो मुझसे छीनना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ से छीनना चाहते हैं, सब लोग मुझसे मेरा हक छीनना चाहते हैं तो जरूर हक छीन ले, फिर मुझे सूली पे लटका दें, मगर अगर आइन कानून और मेरा रब जो मुझे हक देता है वो हक से मुझे महरूम तो ना करें। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। देखते हैं कि आगे जाके किस तरीके से ये मामला है। निहाल हाशमी साहब कह रहे थे कि मैंने कुछ अलग कहा था, वजीर आजम से मुलाकात नहीं हुई, वजीर आजम ने इस्तीफे का नहीं कहा, वजीर आजम ने इस्तीफा वापस लेने को नहीं कहा, नून लीग इतने अरसे से बताती रही है, तर्जुमान वजीर आजम कहते रहे कि उनसे फौरी तौर पर इस्तीफा लिया गया था, उन्होंने कहा वजीर आजम ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मुझे प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं।
नून लीग ही को नहीं, JIT को भी शिकायत हैं। हुक्मरान जमात को शिकायत है कि JIT वाले जानिबदारी दिखा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता नून लीग के रहनुमाओं के लहजे की तलखी बढ़ रही है। साथ ही आज JIT की तरफ से भी कुछ शिकायत सामने आ रही हैं। कोई इनके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहा है, मगर वो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये अब अदालत में ही पता चलेगा। मगर JIT ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने दूसरी रिपोर्ट पेश की और 22 मई की समाअत के बाद एक तनाज़ा सामने आया। इल्ज़ाम तलाशियों में शिद्दत आई तो तवक्को ये की जा रही थी कि आज की अदालती कार्रवाई तवील होगी, तमाम मामलात पर बात होगी, अदालत के सख्त रिमार्क सामने आएंगे। मगर मुख्तसर समाअत हुई और मुख्तसर समाअत में अदालत ने ज़्यादा रिमार्क्स ही नहीं दिए, ज़्यादा हेडलाइंस ही नहीं बनी। समाअत के आगाज़ में JIT अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। बेंच ने कुछ देर सील बंद कारकर्दगी रिपोर्ट का जायज़ा लिया और फिर अदालत में पेश की गई फाइल्स को देखने के बाद JIT के सरबराह को मुखातिब करते हुए जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि तफ्तीश के दौरान आपको जो मुश्किलात और मसाइल हैं, इससे मुताल्लिक अलग दरख्वास्त दें। अपनी नई दरख्वास्त में तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और हक़ाइक़ बयान करें। दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करेंगे। इस हवाले से समाअत के बाद JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नई दरख्वास्त दायर की जाएगी। क्या खदशात क्या हैं बताइएगा, किसकी तरफ से कोई धमकियां मिल रही हैं, क्या कहते हैं? निहाल हाशमी की धमकियों के हवाले से तो कुछ लिखने जा रहे हैं? JIT को किससे शिकायत है वो अदालत को आगाह करेगी। आज की समाअत में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज की तरफ से फोटो लीक की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त दायर की गई। हसन नवाज के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तस्वीर लीक होने की ज़िम्मेदार JIT है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग की किसी कानून में इजाज़त नहीं, इससे बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश होने वाले पर दबाव बढ़ता है। अदालत मामले की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे। ख्वाजा हारिस की दरख्वास्त पर जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले पर JIT को सुन लेते हैं। अदालत ने JIT से पीर तक जवाब तलब कर लिया और JIT वाज़ह करेगी कि हुसैन नवाज की फ़ोटो लीक का जिम्मेदार कौन है। हुसैन नवाज ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि JIT मर्जी का बयान लेने के लिए दबाव डालती है, गवाहों के साथ मुल्जिमों जैसा सलूक किया जाता है। JIT के अरकान दबाव डालकर अपने मतलब के बयानात हासिल करना चाहते हैं। पेश होने वालों को गिरफ्तारी और संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। पेशी के दौरान ली गई तस्वीर के लीक होने के मामले की तहकीकात के लिए हाजिर सर्विस या रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। अब हुसैन नवाज की दरख्वास्त की समाअत पीर को होगी। अदालत बार बार कह रही है कि JIT को 60 दिनों से ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। पिछली समाअतों में भी कहा और आज भी जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क दिए कि तहकीकात दुरुस्त सिमत में जा रही हैं। JIT को दिए गए टाइम फ्रेम में तब्दीली नहीं हो सकती। हम टाइम फ्रेम एक दिन बढ़ाने का भी नहीं सोच सकते। अदालत ने जो वक्त दिया JIT को इसी मुद्दत में काम मुकम्मल करना है। मगर JIT को शिकायत है कि रुकावटें डाली जा रही हैं और नून लीग की शिकायतें भी बढ़ती जा रही हैं। उनके लहजे में भी तलखी आ रही है। नून लीग के रहनुमाओं ने आज भी JIT पर सख्त तनकीद की, बल्कि आज राना सनाउल्लाह ने इशारा दिया कि अगर पार्टी ने तहरीक चलाई तो वो सबसे आगे होंगे। JIT बनी, उसकी कंपोजिशन पर कई सवालात थे कि उनमें कुछ ऐसे लोग क्यों शामिल किए गए कि जिनका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। जो JIT अपनी कुर्सी के नीचे से निकलने वाली तस्वीर को इंसाफ नहीं दे सकी, वो उस कुर्सी पर बैठकर दूसरों को इंसाफ क्या देगी। और ये जो JIT है, ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है। किसी को कहते हैं जबरदस्ती अपना बयान हल्फी वापस लो, किसी को कहते हैं कागज है इन पे दस्तखत कर दो। अगर मुशर्रफ को कुछ नहीं मिला तो इस तरह की नाअहल JIT को क्या मिलेगा जिनसे एक तस्वीर नहीं संभाली गई। ये गैर कानूनी चीजें जो है, ये ज़ाब्ता अखलाक से बालातर होकर जो भी हरकतें हो रही हैं, ये बंद होनी चाहिए। यहाँ पर हमें कानून की बालादस्ती चाहिए। यहाँ पर तस्लील करने का अड्डा नहीं हम तस्लीम करते। अगर तहरीक चलाने का वक्त है तो वो तो पार्टी फैसला करेगी, और अगर पार्टी फैसला करेगी तो इंशाल्लाह मैं तो हरावल दस्ते में हूँगा। पार्टी फैसला करेगी, हरावल दस्ते में होऊंगा। ये JIT है या कसाई की दुकान, इस किस्म की सारी बातें हो रही हैं। हालांकि आज अदालत में समाअत थी। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, ये तय नहीं हो गया कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी कह रही है 60 दिन में तहकीकात होंगी, दुरुस्त सिमत में तहकीकात जा रही हैं। JIT को शिकायत है, आप रिटन में बताएं। हुसैन नवाज साहब को शिकायत है फोटो लीक की, उनको भी आगे का टाइम दिया। मगर नून लीग ने अपनी पोजीशनिंग कर ली है कि खिलाफ फैसला आया तो नहीं मानेंगे। ना सिर्फ नहीं मानेंगे बल्कि सड़कों पर आना हुआ, प्रोटेस्ट करना हुआ, पूरा का पूरा सियासी माहौल इसको बनाया जाएगा। ये फैसला कर चुके हैं आप?
دیکھیں شاہزیب، یہ بات میں نے بھی اس سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ کہی ہے، اور بھی لوگ جتنے بھی کوئی پولیٹیکل کوئی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں سب نے یہ بات کی. یہ ایک پولیٹیکل کیس ہے. میاں نواز شریف کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ اس ملک کی ایک بہت ہی پاپولر جماعت کا سربراہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی کے اوپر جو بھی سوالات اٹھے ہیں، جے آئی ٹی کو اپنی رپورٹ پیش کرنے سے پہلے ان سوالات کو جو ہے وہ ریزالو کرنا ہوگا، ان سوالات کی موجودگی میں، کیونکہ وہ سوالات بڑے سیریس ہیں. ویسے وہ بالکل سیریس ہیں، یعنی کچھ سوالات سیریس ہیں، مگر جو دو سوالات آپ کے ہیں، تصویر والے معاملے کو تو عدالت نے کہا کہ اگلے ہفتے، مگر جو واٹس ایپ والا معاملہ ہے جس کے بارے میں آپ بھی بات کر رہے تھے، وہ جو کال کی گئی، اس پہ نہ تو آپ لوگوں نے عدالت سے کہا کہ اس کو مزید آگے بڑھائیں اور ہماری پلی ہے کہ اس پر بات کریں، آپ نے صرف تصویر کا معاملہ اٹھایا ہے. واٹس ایپ کال کا معاملہ آپ میڈیا میں ضرور اٹھا رہے ہیں، مگر عدالت کے سامنے جب پچھلی دفعہ عدالت نے کہا تھا کہ ہمارے کہنے پہ کی تھی، آپ لوگوں نے اس پر نہیں اپیل کی ہے کوئی بھی کہ اس کو بھی دیکھیں. دیکھیں اس پہ ہم نے ایک دفعہ یہ جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کیا ہے. ہم عدالت میں گئے ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی اس کی پراپر جو ہے وہ سنوائی جو ہے وہ نہیں ہو سکی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فرض نہیں ہے، یہ ہمارا جو ہے یہ ذمہ داری نہیں. یہ ذمہ داری جو ہے یہ جے آئی ٹی کی خود ہے. یہ لوگ جو جے آئی ٹی میں موجود ہیں، یہ ان لوگوں کا اپنا یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خود کو ان چیزوں سے جو ہے وہ بالاتر رکھیں. یعنی 13 گھنٹے جو ہے وہ اس طرح کے ماحول میں، جس طرح سے حسین واز صاحب کو بیٹھا دکھایا گیا ہے، اس ماحول میں آپ ویسے کسی کو 13 گھنٹے بٹھائیں اور اس کے بعد جو مرضی اس سے مروا لیں آپ. کیا مسئلہ تھا ماحول میں؟ تو یہ ماحول جو ہے، یہ سوالات کیا مسئلہ ہے ماحول میں؟ بہرحال بات یہ ہے کہ ایک ایسے کمرے میں مجھے تو خود ذاتی طور پہ ایکسپیرینس ہے کہ جس میں یہ ماحول ہو، جب آپ وہ دیکھیں نا کہ اس تصویر میں آپ کا ایکسپیرینس کے ساتھ بہت برا ہے، آپ کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی تھی، آپ کا ایکسپیرینس تو بہت برا ہے، اور جو دوبارہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہ ہو، اس سے نہ کمپیئر کریں. آپ آرگیومنٹ میں وزن دینے کے لیے آپ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا تھا. یہ سکون سے بیٹھے ہوئے حسین نواز، یہ نہیں ہونی چاہیے تصویر لیک، مگر کیا مسئلہ ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ وہ ماحول بھی جو ہے، وہ جو اس کمرے کا ماحول ہے جس طرح سے ان کو بٹھایا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ جو زیادتی کی بات کریں تو آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، تو پھر ہمارے ساتھ جو انٹروگیشن ہوتی تھی وہ اس طرح سے ہوتی تھی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بھی سوال اٹھے ہیں، ان سوالوں کو ریزالو کرنا، ان کو آنسر کرنا، یہ جے آئی ٹی کی ذمہ داری ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی انویسٹیگیشن. مگر شکایت تو ان کو بھی ہے کہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں ہماری راہ میں، شکایت تو انہوں نے بھی کی ہے. اگر جے آئی ٹی نے بھی یہ بات کہہ دی ہے یا انہوں نے صبح اپلیکیشن دینی ہے، تو اس کے بعد پھر اس جے آئی ٹی کو جو ہے اس کیس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے. رانا صاحب، یہی وجہ ہے کہ اتنی اگریسو آپ لوگ اپنی پوسچرنگ کر رہے ہیں کہ جس طرح انویسٹیگیشن چاہ رہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بس کسی بھی طریقے سے جے آئی ٹی کا کام رک جائے، آپ لوگ چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یعنی جے آئی ٹی کا کیا کام ہے یہ کہنا کہ شکایت ہمیں بھی، اسے کس سے شکایت ہے؟ اگر انہیں رکاوٹیں ہیں، انہوں نے کہا میں رکاوٹیں ہیں، اگر انہیں رکاوٹیں ہیں تو ججز کو بتائیں گے نہیں، آپ ہر بات جا کے بتا رہے ہیں، وہ نہیں بتائیں گے اپنی طرف سے. اور اس کے بعد 13 گھنٹے جو ہے وہ انٹروگیشن کریں، اور اتنی بھی ان میں کٹسی نہ ہو کہ کسی کو جو ہے وہ سیکورٹی کی وجہ سے گیٹ کے اندر آ کے جو ہے وہ گاڑی سے اترنے دیں اور سڑک پہ اتاریں، اور اس کے بعد پھر بھی ان کو شکایت ہے. تو یہ تو کمال کی بات ہے. رانا صاحب، پتہ نہیں یہ جو آپ کی شکایت ہے یہ کتنی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کوئی کام کر رہا ہے جو ہے وہ واقعی متنازع ہو گئی. یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہے کہ عام طور پر جے آئی ٹی واقعی متنازع ہو گئی. عام طور پر یہ اس میں کیا ہو گیا کہ اگر کوئی باہر اتر رہا ہے ادھر جا رہا ہے، مگر رانا صاحب تو پھر یہ طے اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، فار ایگزامپل آپ کی تصویر لیک کے معاملے کا بھی اور جے آئی ٹی کی بھی شکایت کا معاملہ جو ان کی رکاوٹیں ہیں، انہوں نے کہا کہ ریٹن میں دیں. اگر سپریم کورٹ کہے کہ جی آپ کی بھی شکایت غلط، آپ کی بھی، اور آپ چلے، تو آپ لوگوں نے کیا فیصلہ کر لیا ہے کہ عدالت کچھ بھی کہے آپ لوگوں نے نہیں ماننا، جے آئی ٹی متنازع ہو گئی آپ لوگوں کے لیے، جو بھی فیصلہ آئے گا نہیں ماننا آپ نے، اگر سپریم کورٹ مان بھی لے تو؟ دیکھیں اگر تو آپ آفیشیل کیپیسٹی میں پوچھیں، آفیشیل کیپیسٹی وزیر اعظم کی بھی ہے، میری بھی ہے، باقی لوگوں کی بھی ہے. آفیشیل کیپیسٹی جو ہے، جو ملک کا آئین ہے، جو ملک کا قانون ہے، اس کو بالکل جو مجھے سمجھ آ رہا ہے اس کو وزیر اعظم نے بالکل یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ تسلیم کریں گے جو بھی اس ملک کی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. لیکن جہاں تک یہاں سے ماننے کی بات ہے تو وہ تو میاں نواز شریف آج بھی اور آنے والے کل بھی، یہ فیصلے سے پہلے بھی، فیصلے کے بعد بھی، وہ تو ہمارا لیڈر ہے، اس قوم کا لیڈر ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت شکریہ. جی رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس حوالے سے اپنا موقف دے رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، مزید خبروں پہ ایک بریک کے بعد.
23 बार खंजर के वार सहने वाली खदीजा सिद्दीकी का केस 1 साल तक तात्तुल का शिकार रहा। सबूत मौजूद थे, गवाह मौजूद थे, लेकिन फिर भी बाअसर अफराद की मौजूदगी की वजह से ये केस ताखीर का शिकार होता रहा। 23 मई को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और मोअज़्ज़िज़ जज मंसूर अली शाह ने इस केस का नोटिस लेते हुए हुक्म जारी किया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर खदीजा सिद्दीकी के केस की समाअत करके 30 दिन के अंदर इस केस का फैसला करें, जिसके बाद खदीजा सिद्दीकी केस की पहली समाअत 7 जून यानी आज जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हुसैन ऐवान की सरबराही में हुई। आज होने वाली समाअत में मुल्जिम शाह हुसैन के वकील ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया और अदालत को जो दलाइल दिए, उनसे तासुर यही मिलता है कि मुल्जिम शाह हुसैन की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि इस केस में मज़ीद ताख़ीर हो। आज मुल्जिम के वकील ने इस केस की समाअत में ताख़ीर बरतने के लिए अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने हाई कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली समाअत के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है, इसलिए जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता आप इस केस की समाअत नहीं कर सकते। यानी जो डे टू डे हेयरिंग हो, अगर शाह हुसैन मासूम है, हमने कल के प्रोग्राम में भी बात की थी, तो ख्वाहिश होती कि डे टू डे हेयरिंग करें, मगर ना सिर्फ उसको चैलेंज किया बल्कि जब अदालत में डे टू डे हेयरिंग हो रही है तो भी कहा कि जो हमने इसको चैलेंज किया हुआ है इसलिए आज आप समाअत ना करें। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम के इस एतराज़ को रद्द कर दिया, जिसके बाद मुल्जिम के वकील ने अदालत में प्रोसिक्यूटर के फैसले यानी पुलिस गवाहान की जरा करने के हवाले से एतराज़ उठाया और कहा कि पहले खुद खतीजा की जरा होनी चाहिए। फिर से जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनका ये एतराज़ रद्द कर दिया और जब मुल्जिम के वकील को ये लगा कि तमाम एतराज़ात ही रद्द किए जा रहे हैं तो उन्होंने अदालत से एक अजीब सी दरख्वास्त की और कहा कि हमारे पास इस केस की मुकम्मल फ़ाइल मौजूद नहीं है, वक्त दिया जाए। जिस पर खुद जज हैरान हुए कि 1 साल से मुकदमा चल रहा है और आपके पास अब तक इस केस की मुकम्मल फ़ाइल मौजूद नहीं है। जिसके बाद अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी की और मुल्जिमान को तमाम दस्तावेज़ात जमा कराने के साथ साथ प्रोसिक्यूटर यानी खदीजा के वकील को हिदायत की कि वो कल की कार्रवाई में अपने गवाह के साथ पेश हों। आज होने वाली समाअत में और क्या हुआ और किस तरफ ये मुकदमा जा रहा है, खदीजा सिद्दीकी के वकील सलमान सफदर साहब हमारे साथ मौजूद। सलमान, शुक्रिया। सलमान साहब, ज़ाहिर है आज जो हरबे इस्तेमाल हुए वो हमने आवाम को बताया, मगर उससे पहले ये एतराज़ है शाह हुसैन का और उनके वकीलों का कि असल में जो डिले है, जो ताख़ीर है, वो खदीजा की तरफ से हुई, केस नहीं आगे बढ़ा, विटनेस नहीं दिए गए और ये सारा मामला हुआ, कि ये दुरुस्त इल्ज़ाम है उनकी तरफ से? नहीं सर, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये दिस इज़ अ मिस स्टेटमेंट, क्योंकि आज हम बहुत एंशियस थे कि इस केस में हम ये खतीजा के इनिशिएटिव पर प्रोबेबली आपको क्रेडिट जाता है, आपके टेलीविज़न को और आपके शो को क्रेडिट जाता है। चीफ जस्टिस साहब ने इसमें नोटिस लिया, तमीना दुरानी साहब का इनिशिएटिव है कि इन सारों की कलेक्टिव एफर्ट से ये ट्रायल फाइनली शुरू होने वाला है। मगर उसके बावजूद देखें, इस मुकदमे के बैकग्राउंड में भी मोटिव जो था वो हरेसमेंट थी। वो हरेसमेंट आज भी चल रही है, मगर सिर्फ हरेसमेंट का नेचर चेंज हुआ है। पहले वो हरेसमेंट थी टू द गर्ल, नाउ इट हैज़ चेंज्ड इनटू हरेसिंग द लॉयर्स, हरेसिंग द कोर्ट, और मिशन ये है कि किसी तरीके से इनको फ्रस्ट्रेट किया जाए, इनको डराया जाए, धमकाया जाए, और ताकि ये ट्रायल स्टार्ट ना हो सके। मतलब क्योंकि अब आपने इस केस को टेकअप किया है, जो खदीजा कहती रही है वो 1 साल तक इसके लिए लड़ती रही कि मुझे किसी तरह इंसाफ मिल जाए, उसको प्रेशराइज भी किया गया, उसके बावजूद खड़ी रही, 23 दफ़ा उसको खंजर मारा गया और उसको ऊपर वार किए गए। आपको लगता है कि इस केस में आप कन्विंस्ड हैं कि इतने प्रेशर्स के बावजूद इतना पोटेंशियल मौजूद है कि ये इंसाफ मिल जाए किसी भी तरह खदीजा को जो प्रेशर्स डाले जा रहे हैं? शाहजेब, आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड। चूँकि ये मामला सब जुडिस है, आई विल बी वेरी केयरफुल इन व्हाट आई से इन योर प्रोग्राम। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये क्रूअल्टी की, बारबेरिटी की दिन के वक्त इंतहा है। और ना सिर्फ खतीजा को 23 दफ़ा स्टैब किया गया, चेहरे पे, गर्दन पे, नाक पे, शोल्डर पे। उसकी छोटी बहन, प्रॉबेबली ये शायद बात सामने नहीं आई है, शी इज़ ऑल्सो एन इंजर्ड विटनेस, ज़ख्मी है वो, 6 साल की बच्ची को भी स्टैब किया गया है। तो इस केस में ना 2 विक्टिम्स हैं, खतीजा और उसकी छोटी बहन। दिन के वक्त प्री मेडिटेटेड, पूरी तैयारी के साथ रिपीटेड ब्लोज हैं विद अ शार्प एज्ड वेपन, छुरी के साथ, पैर दर पैर वार हैं, और मैंने आपको बताया कि किस जगह इन्फ्लिक्ट हुए हैं। और वेरी रेयरली क्रिमिनल केसेस में डीएनए एविडेंस आता है। सो लोग झूठ बोल सकते हैं, साइंटिफिक एविडेंस, मॉडर्न एविडेंस, फोटोग्राफिक एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, डीएनए एविडेंस मौजूद है, फिंगरप्रिंट एविडेंस मौजूद है, और बच्ची की गवाही मौजूद है, 6 साल की बच्ची। सो सब्स्टिट्यूट क्यों करना है
एग्रेसर को, अटैकर को विद स्केपगोट किसी बेगुनाह शख्स को क्यों बनाना है? सो आई एम कन्विंस्ड कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, इट्स एन ओपन एंड शट केस, हमें बस इजाज़त मिले इसको साबित करने की कोशिश। मतलब मगर ये इत्मीनान भी खदीजा फाइनली, क्योंकि ज़ाहिर डिले होते थे, प्रोसीडिंग्स नहीं होती थी, कि अब मौजूद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम पर अब इसकी डे टू डे हेयरिंग हो, मगर उसके खिलाफ चले गए ये, उसे भी अपील किया कि डे टू डे हेयरिंग ना हो। ये भी अनोखा वाक़या है कि लोग कहते हैं इंसाफ जल्द हो, ये कह रहे हैं नहीं इंसाफ सुस्त होना चाहिए, जल्द नहीं चाहिए हमें शाह हुसैन के वकला और शाह हुसैन। तो अब डे टू डे हेयरिंग हो रही है, इसकी पटिशन के बावजूद आप कन्विंस्ड हैं कि मामला ठीक है और सही सिमत में जाएगा? जी, डे टू डे हेयरिंग का ऑर्डर आया है। ये भी देखना है कि जो हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की है, मैं बहुत होपफुल हूँ कि हाई कोर्ट इस किस्म की फ्रिवलेस एप्लीकेशन को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेगा, और अगर कोई एक केस यहाँ पर फाइनली ट्रैक पर चढ़ ही जाता है, फाइनली अगर उसमें एविडेंस रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाती है, ये कोई स्पीडी जस्टिस नहीं है कि 1.5 साल के बाद एक केस को आपने आज इनिशिएट किया और फिर भी उसमें हमारी रास्ते में रुकावटें पैदा की जा रही हैं, मिसलेनियस फ्रिवलेस एप्लीकेशंस हैं, ताकि प्रोसेस जो है वो डिले हो और फ्रस्ट्रेट हो, और मकसद ये गवाहों को डराना धमकाना, और एक ख़वातीन जो हैं वो कोर्ट में ना आए, बच्चा कोर्ट में ना आए। सो प्रॉबेबली वी विल ओवरकम ऑल ऑफ दिस, और इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल। इसमें मैं ये भी बात बताता चलूँ, मैं अप्रिशिएट करूँगा कि स्टूडेंट्स ने और लॉ स्टूडेंट्स ने इन लार्ज जो है वो आज एक क्राउड स्टूडेंट्स का इन सपोर्ट ऑफ द विक्टिम वो कोर्ट में मौजूद था। तो यहाँ पर ना सिर्फ अटैकर अनफॉर्चुनेटली हैपन्स टू बी अ लॉयर, द विक्टिम ऑल्सो was a lawyer in the making. This is very unfortunate कि लॉ स्कूल के ये बच्चे हैं और ये दिन के वक्त इन्होंने ये काम किया। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ सलमान सफदर साहब, और जो लीगल प्रोसेस है अब उम्मीद की जा रही है डे टू डे हेयरिंग हो और इंसाफ मिले और इस केस का सारे नताइज सामने आए। हम पहले भी कहते रहे हैं कि इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करते हैं कि वो मुकदमात, वो वाक़यात जो सोसाइटी पर असर डालते हैं, जो सोसाइटी में ये इम्पैक्ट डालते हैं कि जी ये सिर्फ और सिर्फ ताकतवर की सोसाइटी नहीं है, ये सिर्फ ताकतवर का मुल्क नहीं है, उन्हें अपने प्रोग्राम में इस तरीके से उठाएं और मंतक के अंजाम तक पहुंचाएं कि ये तासुर गलत है। और खदीजा का केस भी एक ऐसा ही केस है कि अगर आप वकील के बेटे हैं, बहुत सारे वकील आपके साथ हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मैसेज वकला के दूसरे बच्चों को ना चला जाए और इस मुल्क में यही कुछ ना हो रहा हो, उसके लिए लाजमी है कि इस केस में इंसाफ हो। और आखिर तक इस मामले को उठाते रहेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। इराकी शहर मोसुल से दाइश का कब्जा 2 साल में खत्म हुआ। अब भी लड़ाई जारी है, लेकिन इसके बाद दाइश अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है और अपनी दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रही है। आज ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में दाइश की जानिब से एक ही दिन में 2 हमले किए गए। आज सुबह 2 दहशतगर्द हमलों में ईरानी पार्लियामेंट और साबिक सुप्रीम लीडर और रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खुमैनी के मज़ार को निशाना बनाया गया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में 12 अफराद शहीद और 42 से ज़ायद जख्मी हुए। रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खुमैनी के मज़ार पर होने वाला हमला खुदकश था। आयतुल्लाह खुमैनी के मज़ार के पीआरओ अली खलीली के मुताबिक एक मुसल्लह शख्स ने खुद को मज़ार के बाहर वाक़िया बैंक के सामने धमाके से उड़ाया। इतलात हैं कि खुदकश हमला आवर एक खातून थी। इससे पहले ईरान की पार्लियामेंट में फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें सिक्योरिटी गार्ड की हलाकत हुई। दोनों वाक़यात की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल की है, जबकि ईरानी हुक्काम ने दावा किया है कि तीसरे हमले को नाकाम बना दिया गया है। ईरानी पार्लियामेंट की इमारत में सुबह के वक्त 4 मुसल्लह हमलावर दाखिल हुए जो खवातीन के लिबास में थे। हमलावरों ने लोगों को यरगमाल बनाए रखा। मुसल्लह शख्स ने सिक्योरिटी गार्ड और आम लोगों का कत्ल किया। शिद्दत पसंद तंजीम ने एक वीडियो भी जारी की है और दावा किया है कि ये ईरान की पार्लियामेंट के अंदर हमले के दौरान बनाई गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पार्लियामेंट में दाखिल होने वाले 3 दहशतगर्दों की फायरिंग करते हुए उन्हें हलाक कर दिया, जबकि चौथे हमलावर ने खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया। ये ईरान में दाइश का पहला हमला है। दाइश दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ कर रही है, आम लोगों को निशाना बना रही है। दाइश की जानिब से जो हालिया कार्रवाइयाँ की गई उनमें से एक लंदन हमला भी है जो हालिया हुआ, 3 जून को किया गया। दहशतगर्दी की इस कार्रवाई में 7 अफराद मारे गए, 48 जख्मी हुए। हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की और इससे पहले 22 मई को मैनचेस्टर में कॉन्सर्ट पर खुदकुश बम हमले की जिम्मेदारी भी दाइश ही ने कबूल की थी। 20 अप्रैल को फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में कारोबारी मरकज में फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें एक पुलिस एहलकार मारा गया, 2 अफराद जख्मी हुए। इस वाक़े की जिम्मेदारी भी दाइश ने कबूल की।
कार्रवाइयों की जद में दाइश की दहशतगर्दी पाकिस्तान में भी हुई और 12 मई को बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले को निशाना बनाया गया, जिसमें अब्दुल गफूर हैदरी साहब जख्मी हुए जबकि 25 अफराद शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की। 16 फरवरी को सिंध के इलाके 7 में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 88 अफराद शहीद हुए और मुतादिद जख्मी हुए। इस हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की। दाइश का पूरा नेटवर्क फैलता जा रहा है। 2 महीने में सरगर्म गई हैं, कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, पूरी दुनिया में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एक के बाद एक हमला हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी दाइश कबूल कर रही है और अब इसकी पहुँच ईरान तक हो गई है। ईरान में दाइश का पहला हमला इस बात का सबूत है कि दाइश सिर्फ यूरोप के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन गया है। अफगानिस्तान में भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।